अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सहारम पखैर, ستړي مشه په خیر راغله. څنګه یې خیر ټیک ټاک د زیارت روز ټول ته ډیره په خیر اغلاس پدې کې او د زیارت روز خسته روز وي خپل روز وي ولې دینه پس ویکند شروع کیږي سبا جمعه بروز هفته اتوار او بلکې د جمعې پرز خو یو خوشحالي هم ده. زه به د خیبر فیملی وته وای چې د خیبر پکور کې د نن د خیبر د فیملی دی او تند لور واده دی نو هغه له مونږ ان شاء الله زو هغه بل یو بیا سلیبریشن دی. په خوا به خلک وایي چې یاره خوشحالي صرف د الګ واده باندې کول پکار د جنې کور کې به یو ویر وو یو فریاد وو یو تکلیف به وو چې به جنې ودیږه پکار هم چې هغه درد وي هغه تکلیف وي خو زه به وایم چې هغه تاسو نه رخصتېږي بل کور ته ځي نو ټیک شو درد په خپل ځای باندې پکار چې هغه تاسو دومره هپي رخصت کې دومره خوشحاله رخصت کې چې هغې ته لګي چې واقعي یاره زما رخصتي ډېره په خوشحالۍ باندې شوه چې تاسو ورته چې دې جړه فریاد د 3 ورځو نه راغشتي په کور کې وایي دا مېلمنه ده وایي دا روانه ده نه غریب هم زړه واچي چې بس پته نشي زه کوم ځای کې پوښتې مکه کوم پانسي ګاټ ته زه روان یم نو چې څومره لور خور په خوشحالۍ باندې رخصتولی شي نو زیات خوښوي. ټیک شو رخصتۍ ټایم کې جړه هغه په خپل ځای باندې خو کو زړه غواړي او که نه غواړي خو به خامخا جاړي ورسره خلک هم جاړي بټ د هغې نه مخکې چې کوم هغې له لږ قدر سیوا ورکوئ د هغې خواهشات پوره کوئ هغې سره هسي خوشي باندې ټایم تېروئ چې کله هغه بیا بل کور چې هغه میموریز هغې ته ریکال کېږي زما د واده ورځې شپې وې او ما دا وکړل نو هغې سره بیا د هغې هغه تازه ورځې شپې لږې نورې ښایسته تېرېږي. اچھا جی دا خو د ودونو خبرې دي خو وسرې چې دی داسې وته به اچھا ګرانو لیدونکو تاسو کال کوئ چې په کال باندې بس تاسو چې دی تاسو سره کېږي خبرې اترې نن به زه دغه وایم چې نن مو سره یو فیډرل سره تعلق لري منتصب صاحبه ده او هغه ځکه مونږ نن هغه مدعو کړی د هغې راغلی دي پېښور ته چونکې اسلام آباد بیس وي هغه هیډ د دغه ځای نو اسلام آباد ته پېښور ته راغلی نو مونږ چې دا موقع ده چې مونږ هغې سره کښېنو هغې سره خبرې وکړو او ماشاءالله ډیفینټلی چې مونږ کله صوبای متصب صاحبانې راغوښتي دي هغې سره خو د صوبې په سطح باندې مونږ چې دې خبرې اترې کړي دي خو چونکې دا فیډرل ده وفاقي ده نو دې سره به د وفاقي طور باندې چې کومې مسلې مسایل دي انډر چې څه شی نه راځي کوم خبرې راځي ما اورېدلي چې د هغې زیات فوکس چې دی د هغه زنانو چې کوم د ورکینګ کلیز باندې هغې ته هریسمنټ کېږي په دې باندې د هغې زیات کار شروع دی نو دغې باندې هم ورسره خبرې اترې کېږي نور د هغې په انډر کې څه راځي او څه خدمات هغه سر انجام کوي د ستاسو دپاره د عوام دپاره په هغې باندې هم خبرې اترې کېږي هغې سره بیا یو فوډ اینډ ټریول بلاګر دی ویلاګر دی هغه به راځي هغې سره به کېږي خبرې اترې چې چېرته تللی دی کم ځای نه ایکسپلور کړي دي او کم خوراکونه هغه زیات خوري. نن سبا دا هم دی چې مونږ یو ښه بهترین هوټل غواړو نو مونږ نیټ باندې سرچ کړو چې آیا او بیا د خلکو ریویو ګورو نو دا اوس مونږ ته د ویلاګرز فوډ ویلاګرز دپاره د دې نه مونږ ته یو غټه فایده دا ورسېده چې مونږ هغې سرچ کړو چې آیا د پسې ریویو ورکړه د دا ویډیو څومره میلیونز کې تللی نو مونږ بیا هغه خوراک سکاک چې دی مونږ هلته هغه ځو او هغه خورو او دغه شانتې لوکیشن هم دی نو نن داسې لکه هټ کې مېلمانه مونږ سره راغلي دي هغې سره به هټ کې خبرې کېږي ستاسو ټلیفون کالز به اخیستې کېږي ګپ شپ به لګي زما او د ستاسو د ټلیفون په لاره باندې او ستاسو دپاره سرپرایز هم دی یعنی ټلیفون کال باندې به زه به تاسو نه یو تپوس کوم ولې چې موږ سره زموږ سپانسر دی جلک بیوټي کریم او د جلک بیوټي کریم د سایډ نه ستاسو دپاره دی ګفټ هیمپر او هغه به زه تاسو ته لږ ساعت پس وایم چې هغه سوال څه دی چې په کوم سوال به تاسو دا ګټئ او بیا به چې دې وروستو مونږ لګو ګپ شپ نو جلک بیوټي کریم وایي چې دا ریموف کوي د ستاسو ډل سکن او دا تاسو له درکوي رینکل فری سکن د ستاسو ډارک سپاټس چې دی هغه ریموف کوي اینڈ جسٹ ان 3 days صرف ګرانو کتونکو لکه خوبصورتي تاسو صرف او صرف په 3 ورځو کې حاصلولی شئ د جلک بیوټي کریم د سایډ نه او د جلک بیوټي کریم چې کله تاسو لګوئ ګرانو کتونکو طریقه استعمال ډېر ایزي دی په دې باندې ټول هغه شیونه چې دی کیپشن کې راغلي وي او تاسو چې دی نو د ستاسو مخ باندې چې ګونجې راشي بې وخته ګونجې راشي هغه لرې کوي ستاسو په مخ د دانو د تیر سرو داغونه راشي هغه لرې کوي او وسرې ستاسو سکن له چې دی یو فرش ګلو درکوي نن سبا سړی غواړي چې د بغیر میک اپ ښایسته او فرش کارم نو جلک بیوټي کریم موږ سره دی سوال ډېر آسان دی ګوګل سرچ کولو ضرورت نشته تاسو ته آی نو چې لاست ویک هم تاسو ګوګل سرچ کړی ما ته پته نه ګوګل ډېر اسانه کړې ده بټ خیر خپل د دماغونه هم کار اخلی سوال به لږ ساعت پس وایم ولې چې اول به زه مېلمانه انټروډیوس کوم مېلمانه به راغواړم یې سره به لګوم ګپ شپ لګوندې او پس د هغې بیا تاسو ته زه کوم ګپ شپ سوال جواب او ټلیفون کالز نو سوال یې وړه غونډې کېدم پس د هغې بیا راځو
वेलकम व्यूअर्स په خیر راغلی یو ځل بیا د بریک نه پس تاسو ګورئ د خیبر سحر لایو د پیښور سټوډیو نه جی او نن د چترال ښکلا به مونږ ایکسپلور کوو نن د خپل ملمه د سترګو نه او چې کوم دی ویډیوز کیپچر کړي دي هغه به تاسو ته مونږ ښایو چترال سره تعلق لري خو چې دلته سبق کوئی سټوډنټ ته لګیا دی او ट्रैवल व्लॉगर्स دی جی نو فرحان عزیز مونږ سره دین کو ویلکم کرتے خوش آمدید وعلیکم السلام فرحان جوړ ठीक ठाक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाएं ठीक ठाक फरहान बिल्कुल पुख्तो न पोएगे बिल्कुल नहीं समझता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता हूँ अच्छा बोल नहीं सकते हो तो अगर चतराली में आप मैंने जैसे आपको वेलकम कर दिया ठीक है तो आप मुझे शुक्रिया जैसे आपने कहा ढेर बहुत बहुत शुक्रिया ये वो तो आप चतराली में किस तरह कहोगे मतलब मैं आपको शुक्रिया अदा करूँ चतराली में इधर आए हो तो आप किस तरह शुक्रिया अदा करोगे अवत अबो शुक्रिया अदा कुमान तू हनून महाया मशकिता मतलब आज आपने मुझे इधर बुलाया है मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हयातुन शुयातुन अवत शुक्रिया अदा कुमान तो शुक्रिया अदा कुमान तू हनून महाया मशकिता मशकिता मशकितो मशकिता यादी मशकिता मतलब मशकितों क्या आपने हमें बुलाया इधर बुलाया वाह चतराली आसान है कि मुश्किल है आसान है मतलब मुख्तलिफ जुबानों से इसकी वो अल्फाज मिलते हैं ज्यादातर थोड़ी सी फारसी से हाँ, फारसी और अरेबिक थोड़ी सी टच अल्फाज, आते हैं ना हाँ क्या बात है जी अच्छा आप क्या कर रहे हो स्टूडेंट क्या हो मैं स्टूडेंट हूँ मेरा आई एम साइंसेस में सेकंड ईयर चल रहा है बीएस का तो इसके साथ मैं मतलब मुख्तलिफ ट्रेवलिंग करता हूँ हमारा एक एजेंसी है रोडीज क्लब खुद मैं चतराल से हूँ बेसिकली तो मैं ट्रेवलिंग का बहुत शौकीन हूँ चतराल का मैंने हर इवेंट्स जो कि फेस्टिवल होते हैं वो अटेंड किया है तो इधर आके मतलब मैंने एक एजेंसी रोडीज क्लब के नाम से हमने वो किया है तो यहाँ से टूरिस्ट को टूरिस्ट ले जाते वन डे ट्रिप भी हम लगाते हैं चतराल के लिए ना चतराल के लिए नहीं अभी मुशपुरी ये हो गया मुशपुरी टॉप हो गया गबीन जब्बा हो गया और मालम जब्बा हो गया ठीक वन डे ट्रिप आप हर वीक में हम निकलते हैं और चतराल का किस तरह अगर फर्ज करे कोई जाना चाहे आपके साथ ना तो कितने दिनों का और कितना वो सारा कुछ होता है चतराल का ये होता है कि मतलब थोड़ा दूर है वो तो इसलिए 2 to 3 डेज मैक्सिमम होना चाहिए क्योंकि उधर जाके आप मुख्तलिफ जगह बाय रोड हाँ बाय रोड तकरीबन 8 घंटे का सफ़र है इधर से चतराल तक अच्छा सफर है प्यारा रोड है रोड अभी प्यारे हैं पहले ख़राब थे जज़ाकल इरादे जोड़ो कम प्यारा इसी खैर दे हाँ इंशाल्लाह अच्छा जी ये बताओ मुझे पुख्तों के बदले सवालों कम व्यूअर्स से पता हो लगी खैर उर्दू तो अब कौमी ज़ुबान है सबको समझ आ जाती है द ट्रैवलिंग द शौक दस्ता वेल डेवलप शो अपने चतराल की खूबसूरती को देख के कि नहीं सवा जवाब जी बिल्कुल ये क्योंकि मैं बचपन से तकरीबन 8 क्लास तक चतराल में रहा हूँ तो हम मुख्तलिफ जगह जाते थे उधर दोस्तों के साथ हाइक करके भी हम जो कि पाकिस्तान का नेशनल पार्क जो चतराल गोल्ड नेशनल पार्क जहाँ पे मारखोर भी होते हैं उधर जाते हैं हम हाइक करते हैं तो मतलब उस टाइम से शौक लगा है कि ट्रेवलिंग करना है मुख्तलिफ जगह एक्सप्लोर करना है तो द टोल नमक के चतराल एक्सप्लोर करे टोल चतराल के तद कम जाए कम चतराल के सुम्र ज़ैन दी जिले दी इलाकी दी खारून दी सुमरे दी चतराल अभी एक लोअर चतराल है एक अपर चतराल है लोअर चतराल जो कि टाउन में आता है नीचे तरफ अपर चतराल अपर चतराल जो कि दूसरा जिला है बना है अच्छा जी नदारा तो चतराल के अलावा कौन से जगहों पे आपने ट्रैवलिंग किए लोगों को ले जाते हो और क्या सीन होता है कश्मीर हम गए हैं मतलब लोगों को लेके कश्मीर कुमराट हुंजा और वन डे ट्रिप्स पे हम मरी जाते हैं इस्लामाबाद जॉयलैंड मतलब स्टूडेंट जो होते हैं वो वन डे ट्रिप लगाते हैं ज़्यादातर इस्लामाबाद खुदा तो स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो शौकीन होते हैं तो उनको लेके हम फैसल मस्जिद जॉयलैंड वगैरह और मुशपुरी टॉप ठीक ये नाथिया गली वाली साइड में अच्छा जी और ये बताओ कि स्क्रीन पे आपका फर्स्ट टाइम है फर्स्ट क्योंकि छोटी स्क्रीन पे सोशल मीडिया पे तो आप बनाते रहते हो चीजें बिग स्क्रीन पे जैसे हमारा नेटवर्क है फर्स्ट टाइम है फर्स्ट टाइम है कैसा लग रहा है अपने छोटे से फोन से निकल के बड़ी स्क्रीन पे आके कैसे लग रहा है अच्छा लग रहा है बस इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह जो नसीब में होगा वही मिलेगा इंशाल्लाह अब ये बताओ कि चतराल रस्म रिवाज बारह के रात हुआ या पदे इन्हीं समझ तो आ रही है ना जो मैं पूछना मैं कह रही हूँ रस्म रिवाज बारह के रात चतराल की कम गेमों ना कम सीजन्स की चतराल का जो मशहूर गेम है वो पोलो है चतराल मशहूर इसी वजह से पोलो की वजह से जो पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फ्री स्टाइल वो जुलाई में होता है हाँ जुलाई में होता है और जून जुलाई इस टाइम होता है जो कि फ्री स्टाइल मतलब उधर कोई रूल्स नहीं होते हैं
खेलते हैं। ठीक। तो इसी वजह से स्पोर्ट्स में पोलो का बहुत शौकीन रखते हैं लोग, घोड़े पालते हैं अपने खर्चों से। घोड़े का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। घोड़े का खर्चा मतलब जो खर्चा होता है अच्छा, उसका घोड़े खुराक। का। हाँ हाँ। मैंने कहा घोड़ा उधर क्या कर रहे हैं, घोड़े का खर्चा क्यों ज्यादा होगा। अच्छा जी। तो क्योंकि अच्छे नस्ल का घोड़ा रखना ना। फुटबॉल में जो टैलेंट है चित्राल का, मतलब हर खेल में है। फुटबॉल का भी आप देख ले, नेशनल प्लेयर्स काफ़ी चित्राली है। अंडर 23 पाकिस्तान के नेशनल प्लेयर्स भी रह चुके हैं हमारे चित्राली। तो उसके बाद ये पोलो जो एक फेस्टिवल होता है शंदू। आपको आते है पोलो गेम आते है? मैं शौकीन हूँ लेकिन फिलहाल अभी नहीं खेला है। अच्छा, फिलहाल नहीं खेला। तो क्यों, उसके लिए कोई एज लिमिट होती है? ना ना, उसका मतलब आप घोड़ा पाल सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो अपने लिए। अच्छा, आप घोड़ा ऐसे बोल रहे हो ना, गोरा घोड़ा। अब लोग बाहर टिकट करके कि गोरा लाएंगे कि गोरे को पालने, उसको पोलो गेम में लेके स्पोर्ट्स इसके साथ ऐड किया ना। स्पोर्ट्स को ऐड किए। अच्छा, अब ये बताओ कि ये चतराल में कहते हैं मुख्तलिफ रस्म व रिवाज होते हैं, ठीक है, और चतराली लोग कहते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कहते हैं एक रस्म ऐसे होते हैं कि वहाँ पे मतलब इज्तिमाई शादी कह लो या इस तरह की वो कह लो कि जो जिसको पसंद आ जाए वो उसके साथ शादी करती है। ट्रू है? ये इस तरह होता है कि मतलब आप शादी करना चाहते हो, अगर आपको मतलब कोई पसंद आए तो आप उसके घर रिश्ता भेज सकते हो। अच्छा, तो वो इनकार नहीं करेगा? इस पर डिपेंड करता है, अगर वो इनकार कर लेगा तो नहीं हो सकता है, इनकार नहीं करेगा। वो ये रस्म तो हमारे यहाँ भी अगर पसंद आए, लेकिन वो कहते हैं यार, तो वो कहते हैं मैंने ये सुना था फेक चीजें आती तो रहती है कि जो पसंद आ जाए बस उसको उठा लो। ना ना, ये गलत वो सुने हैं आपने कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत वो फैलाते हैं कि इस तरह। ऐसा कोई सीन नहीं है? ऐसा कोई सीन मेरे अगर ऐसे सीन होते तो मैं चली जाती, किसी को बस हाथ से पकड़ के ले आती। अच्छा, जिस तरह वीडियोस अपना फाइज बेटा इनकी वीडियोस दिखाओ कि चतराल द कम ज़ेन एक्सप्लोर करी द चतराल द थोड़ा ना मजेदार इलाका कम आया वाला। चित्राल का सबसे खूबसूरत इलाका गरम चश्मा वैली है। गरम चश्मा जो उसकी वजह ये है कि उधर एक गर्म पानी है जगह जहाँ जमीन के अंदर से गर्म पानी निकलता है। हमने सर्दी गर्मी वो गर्म पानी मतलब होता है। वो गर्म बर्फ में भी वो गर्म निकलता है। तो हमने सुना है बरों से कि मतलब वो ये बीमारी के लिए भी कुछ वो अच्छा है, शफा है। तो बाकी उसका नहीं पता। आप खुद गए हो आपने उस गर्म चश्मे को? मैंने खुद एक्सप्लोर किया है, गर्म है वो। अच्छा, गर्म होता है। तो उसके बाद अभी मारखोर व्यू पॉइंट जो उसी रास्ते में आता है जहाँ पे आप असर के टाइम मारखोर को अपने नजदीक से बिल्कुल देख सकते हो। तो उसके अलावा ओयोन वैली है जहाँ से आप जाके कैलाश वैली जा सकते हो, बम्बुरेत जा सकते हो और रुम्बूर वैली जा सकते हो। ओके, हम उस दिन गए थे म्यूजियम ना, तो वहाँ पे हम कैलाश कल्चर की तरफ गए थे। वहाँ पे उनके जो पुराने ज़मानों की उनके जो स्टैचूज थे वो लकड़ी से जो बुद्ध बने होते हैं ये वो, तो कुछ चीज़ें हमने वहाँ पे एक्सप्लोर किए, कल्चर आप लोग का एक्सप्लोर किया। लेकिन वही होता है कि आंखों देखकर जो चीज़ें होती है ना वो ज़्यादा बंदे को अट्रैक्ट कर रही होती है, ठीक है ना। आपको अपने चतराल के अंदर कौन सी जगह ज़्यादा पसंद है, या जब भी जाते हो? जब भी मैं जाता हूँ मुझे जो ये नेशनल पार्क है चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क, क्योंकि ये खूबसूरत, इधर आप हाइक करके जा सकते हो। हाइकिंग वगैरह हाइकिंग इधर रोड कच्चे हैं लेकिन बनेंगे तो टूरिस्ट के लिए बहुत मतलब अच्छा स्पॉट बनेगा। अगर मतलब इधर से टूरिस्ट आएंगे अपनी गाड़ी लेके आराम से उधर जा सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ज़्यादातर मुझे वो पसंद है क्योंकि हम हाइक का वो करके जाते हैं। अब जो आपने तासुदाखल ट्रैवल एजेंसी जोड़ा खड़े दा या जी चीजें करते हो न दगा ची दे दा रजिस्टर्ड दा ट्रस्टेबल दा सुमर मुदे न दा कार कई लग्या दे? ये तकरीबन साल हो गए रजिस्टर्ड है और ट्रस्टेड। रे माने बकायदा नूर खबरी को टिक शो चे सुमर टूरिस्ट तासु बोजे दागी द खुराक स्काक से वी पर हेड सिंगवी पर खबरे को यो द माल अग्रान को तुनको पस दागी दाराज یو ځل بیا د بریک نه پاس او موږ سره ټریول ویلاګر ناسته فرحان عزیز او د چترال سره تعلق لري او په پیښور کې د سټوډنټ په تور باندې جون کوي لګیا دی ټریولینګ دی وی چې زموږ د خپل ایجنسی دا نو اگر کو څوک تاسو سره غواړي ټریول کول غواړي نو هغه تاسو سره کانټیکټ څنګه کوي؟ हमारा इंस्टाग्राम पेज है रोडीज के नाम से, रोडीज क्लब के नाम से। उधर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरा डिटेल उधर है, नंबर वगैरह भी उधर शेयर किए गए हैं। ठीक। और दस्ता सुसो चार्जेस से भी पसिशी के जे कोच के जे बस के जे फ्लैंक कोच के जे सशी के जे चार्जेस मतलब वो मुख्तलिफ डिपेंड करता है लोगों पे कि कम लोग हों तो उनके लिए हम फ्लैंक कोच करते हैं हाईएस्ट जो होता है। तो 1 डे का हमारा जो चार्जेस है अगर लाइक मुशपुरी जाना चाहे कोई तो उसके लिए हम 3800 रखते हैं। उसके साथ हम ब्रेकफास्ट रखते हैं। अच्छा। वीडियोग्राफी होती है, मतलब वीडियोग्राफी और जेमिंग वगैरह भी होती है। अच्छा। तो इसी तरह
तो अगर रहने के लिए 2 to 3 डेज हो जाए तो उसके लिए मुख्तलिफ कुमराट अगर हमारा जो बनता है उसका तकरीबन 14,500 इस तरह पर पर्सन आता है। उसमें फिर स्टे भी होता है हाँ, आप लोग का? स्टे भी 2 फिर days अच्छी 1 जगह? night 2 days 1 1 नाइट। हाँ। ठीक है। नुदा दस्ताव सुजदे ये इनका एक कह ले कि खूबसूरत सा एक ट्रैवल होती है जिसमें म्यूजिक, ट्रैवलिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ये सारा कुछ, खाना पीना, जस्ट ओनली ब्रेकफास्ट। Yes, बाकी अगर उनको भूख लगेगी दोपहर को, रात तो को? वो मतलब जो 1 डे का होता है उसमें वो खुद खा सकते हैं। हाँ। जो ये हमारा 2 to 3 डेज होता है इसमें इस सारे सब कुछ वो है उनके साथ इंक्लूडेड है, हमने उनको इंक्लूडेड किया है। ओके, तो भाई एक काम कर ले सासु चित्राल वाला वीडियोस मुंग सरी दी, तो चित्राल की वीडियोस आए देखते हैं कि वो चित्राल के दचिकम चित्राल एक्सप्लोर करे दे आगा आगा वीडियो ची दी आगा ताउस तखायु प्लस चिकम जमुंगा व्यूअर्स दी वगी टीवी गुरी दे वक्त नो दागी द पारा द जलक ब्यूटी क्रीम द साइड ना यो क्वेश्चन दे और आसान सवाल दे चे जमुंग द पाकिस्तान कौमी तराना चिदा आगा चाली कलेदा ढेर आसान सवाल दे पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा है। ठीक है, नो तो दे जवाब बताओ सुमाल राकवे विदाउट सर्चिंग गूगल द गूगल ना बगैर बताओ सीधी माला दे जवाब राकवे। आपको पता है किसने लिखा? कौमी तराना हाफिज। हाफिज क्या? जालंधरी। क्या? जालंधरी। जालंधरी, हाफिज जालंधरी। क्या खूब अंग्रेजान चिकल पुख्तो हुई का ना ये उर्दू। अच्छा जी, तो हम बाद में बताएंगे कि सही था या गलत था, क्योंकि हमने तो अभी व्यूवर से सवाल पूछे। जलक ब्यूटी क्रीम के साइड से है और जलक ब्यूटी क्रीम हुई थी जस्ट इन 3 डेज सासु स्किन ची दिया ग्लो की, नेचुरल ग्लो की, खैस्ता स्पिन वाली पके राजी और रिंकल फ्री फेस दर कई डार्क स्पॉट्स और रिंकल्स चीज बिल्कुल लरे कई जलक ब्यूटी क्रीम द साइड ना क्वेश्चन दे सवाल दे उमा का तरीका भी चे ज्याद जवाबात मुंग लरा शुन मुंग बे कुरानदाजी को कुरानदाजे के बे द 4 नंबर यानी नंबरो वो तो अगले बागा गिफ्ट चे दे मुंगा इंशाल्लाह वर रसो कोर्ट दा से का ना। ठीक है ना, ऐसा है। अच्छा जी, वो चतराल वाली वीडियो जरा दिखाए कि मैं भी चतराल देखूं। डेर वजह के चतराल तता सुजे ट्रैवल कवे क्योंकि ये मौसम दा से यखनी आखनी शुरू हुआ। शौकीन जाते हैं इस टाइम भी, मतलब जो शौकीन होते हैं ट्रेवलिंग का वो कहते हैं कि जाना है, क्योंकि अभी उनका कलाशियों का दिसंबर में फेस्टिवल होता है। अच्छा, तो वो किस चीज का फेस्टिवल होता है? वो चिमुस के नाम से इस तरह कुछ होता है यहाँ। अच्छा, आगे तो मतलब उधर अपने वो कल्चर को वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, उनका अपने जगह होता है, डांस वगैरह करते हैं। 2-3 दिन का होता है। अच्छा, ये बताओ ये कौन सी जगह है? चतराल की कौन सी जगह है? ये अपर चतराल है। अपर चतराल। अच्छा जी, ये देखिए जी, ये कैलाश वैली। कैलाश, क्योंकि उधर जो घर है कैलाश वैली के वो उसी जमाने के, जो 200 पुराने जमाने के। उधर एक तारीखी घर भी है, जो फर्स्ट घर उधर बना था 200 साल पहले, वो अभी भी है, अभी भी रहते हैं उधर। तो वो उसकी कंस्ट्रक्शंस वगैरह होती है कि नहीं एज इट इज हालात में? उसी हालात में है। अच्छा, तो टूटने फूटने वाला जो लग रहे हैं उन्होंने इस्तेमाल किए वो बहुत ज्यादा मजबूत है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये बताओ ये कौन सी जगह है? ये तारीखी मस्जिद है चतराल का, शाही मस्जिद जिसको बोलते हैं। इसके पीछे शाही किला है चतराल का। अच्छा, चतराल उधर भी शाही किला, प्रिंसली स्टेट था पुराने जमाने में। तो अब ये आपका चतराली लिबास लड़कियों के खवातीन के जो खास कैप और वो जो ज्वेलरी वाला वो होता है ना, मर्दों का भी कोई खास लिबास होता है कि नहीं जस्ट वो कैप पे? वो कैप मर्दों का वही होता है, और हमारा जो जैकेट की तरह वो लंबा सा, हाँ वो होता है। उसको क्या बोलते हो आप लोग? उसको हम चूहा बोलते हैं चतराली में, वो हमारा होता है। ओके, अब चतराली डांस भी है स्पेशल? हाँ, चतराली डांस भी स्पेशल है। और जो कलाश वो खास कर कलाश जो है उनके ड्रेसिंग थोड़ा यूनिक है ना, एक जैसे होते हैं। कॉल भी ले लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सो क्या मुक्सर है? मैं तो गल कर लिया। कौन बात कर रहे हैं? अरे मैं तो असलम गल कर लिया, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करनी है जुमे वाले ਜਿਹੜਾ प्रोग्राम ਹੁੰਦਾ ਵਾ। अच्छा भाई, तुसे जरा अपना नाम एक बारी बात दसो के ना है? असलम असलम अरे मैं तो अच्छा, असलम 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 कितो कॉल किया फिर? अरे मैं तो अच्छा जी जी जी, बताए क्या कहेंगे साढ़े शो बारे? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਮਸ਼ੇਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਵਸੀਮ ਬਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਜਮਸ਼ੇਦ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਰਕ ਦੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਥੋੜਾ ਵਾ, ਕਦੀ ਜਲੇਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਦੀ ਚਮਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ। अच्छा अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ। ਜੁਮੇ ਦੇ ਦਿਨ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। अच्छा, तो एक काम करें ना आप अपना, असलम साहब
जुम्मे दिन वाला शो तुसी जरूर देखो, कल दा शो देखो, उसे जमशेद साहब भी उसे ते वसीम साहब भी होंगे ते वो दुआ साडा कामरान जान साहब भी उसे ते जकीउर रहमान साहब भी। कामरान साहब दा नाम ते तू बड़ा और सारा रखया वा। कामरान जान साहब तो तुसी दा के है? हाँ जी मैं सारे वेखे ने। अच्छा सारे देखे ते वो सब तो प्यारा कौन लगदा है? बेहतरीन शो सारियां दा हुंदा। खुशी हो गई असलम साहब तुसी पंजाबी इस पे गल कर दे ते मेरी इनको ते पंजाबी दोनों जवाब दे दी छोड़े। अच्छा ते तू बीमार हो गई था फिर इन्हें किते थी। हेलो के कहंदे हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ तुसी के बोले क्या सी हुए? मैं बीमार हुई थी। हाँ जी। अच्छा मैं वो जुड़े ऑफ करके गई थी। मर दे दावा ਕੱਲ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਚਾਵੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੋ। कसम खुदा दी मैंने कख समझ नहीं आया कि तुसी क्या कह रहे सी। ये खुदल तदावाज से लगता से टाइट पंजाबी बोल रहा था कि कसम मेरे सर के ऊपर जा रही थी वो पंजाबी। हाय अल्लाह इतनी मुश्किल पंजाबियों के साथ मुझे मत बिठाना। एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया असलम साहब आपने कॉल की। कहाँ से कॉल की थी? रीम यार खान से आपने कॉल किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ बात की। रीम यार खान में जो है तो पंजाबी नहीं वो सराइकी हिनको है ना, ये सराइकी हिनको है। सराइकी हिनको समझ आती है? सराइकी मेरे कुछ दोस्त है, मैं 2 साल लाहौर में रहा हूँ। तो बोल जरा किस तरह बोलने? भूला हूँ अभी 2017 में मैं इनके साथ था। दोदरे अल्फाज अबरीज दकड़ू चिदला खुद जवाब पर करो कद जे पके आई शाही बाइक। एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये कहो कि जो आप जैसी यंगस्टर्स है जो चतराल से या किसी भी जगह से वो ताल्लुक रखते हैं और वो अगर खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं तो उनको क्या मैसेज दोगे? मैं यही मैसेज दूंगा कि मतलब एक बंदा कर सकता है तो हमें भी करना चाहिए वो चीज़, कि हम में भी वो टैलेंट होगा। खामखा वो है लेकिन वो बाहर निकालना हमारा काम है कि ये चीज़ करना है, प्रमोट करना। तो ये सारे नौजवानों को मैं यही कहूँगा कि अपनी स्टडीज़ के साथ अगर दूसरी चीज़ों में एक्टिविटीज़ में भी अगर फोकस कर लो, दोनों मेंटेन रख सकते हो तो एक टाइम में एक साथ तो अच्छा है, वो बहुत अच्छा होगा। अच्छा होगा। और दूसरा ये बताओ कि आप बड़े होकर क्या बनोगे? मैं इंशाल्लाह बिजनेस का, बच्चे यही कहते हैं ना मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, तो आप बड़े होकर क्या बनोगे? बिजनेस का इरादा है मेरा। बिजनेस करोगे? तो कौन सा वो चतराल से अच्छे अच्छे स्टोन्स लाकर बिजनेस करोगे या क्या करोगे? यही इरादा है बस, इंशाल्लाह आगे देखेंगे। चले गुड लक, थैंक यू सो मच। क्या कहोगे यहाँ आके कैसा लगा? मतलब बहुत अच्छा लगा, शो बहुत अच्छा था, होस्ट जो थे खासकर आप बहुत अच्छे लगे। कितने होस्ट थे? आप एक मैं तो थी यहाँ पे, वो मेरा भाई तो किसी के इंतजार में खड़ा था। तो थैंक यू बोलूंगा कि इनवाइट करने के लिए। हर कलर राशि देर ज्यादा मना है और आपके लिए हम जो है तो मिलमाने मूंगा तशलास न लीगू, क्योंकि हमारे पठानों का एक रस्म है मेहमान जब भी आते उसको कुछ ना कुछ देखे जाते, ठीक है ना। तो आपको हम देंगे झलक ब्यूटी क्रीम के साइड से गिफ्ट हैम्पर। ये बताओ शादी तो नहीं हुई होगी? नहीं हुई ना, बेचारा करना भी मत। बहन है? बहनें हैं मेरी दो। इधर है चतराल में होती है, इस्लामाबाद में होती है। तो ये जूसर उसको दे देना, ठीक है। इसका खूबसूरत सा उसके काम आ जाएगा किचन में। साथ ही साथ उसके मेकअप प्रोडक्ट है झलक ब्यूटी क्रीम के साइड से, तो ये आप उनको जरूर दे देना, ठीक है जी। और ये हम आपको दे देंगे, ये ले ले झलक ब्यूटी क्रीम के साइड से गिफ्ट हैम्पर है। और ये जस्ट इन 3 डेज आपको नेचुरल ग्लो देगा। आपको नहीं, सॉरी आपके बैंक को चतराली खूबसूरत गोरी चिट्टी होगी, मैं मजीद ये निकार देगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच बच्चे, खुश रहो एंड ग्रानो को तुनको तासु वाले यो वुडु के गोंते के ई जो ज़ात द ब्रेक और पास दागे 11 वेलकम योजल इबादत वाइम हर कले तासु गोरे द खैबर सा लाइव द पे खबर स्टूडियो ने जी उसिंग जमाता सवीलु चे द चा सम सलीवी द चा प दफातर के या वर्किंग प्लेस के या हरेसमेंट कीगी जनानो तो हम नारीनो तो हम या इवन क्रॉस जेंडर तो हम नागिलोस दे रेदो जरूरत निश्ता वाली चे मुंगला यो गोल्डन चांस फला सर आगले दे चूंकि ददी तालुक ते इस्लामाबाद से द हेड द आगज द बट पे खबर तर आगले दिन मुंगा वे क्यों ना ये मौका हाथ से जाने नहीं चाहिए। और मुंगा दिनन खपल स्टूडियो तो राग उख्तल जी वफाकी मुतसिब साहब जी और फौजिया वकार से बदीन अहमद और दी तो वेलकम को खैर अगलाज हो तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको खुशामदीद। और आप ये बताएं कि पेशावर आती रहती है कि नहीं फर्स्ट टाइम आई है? नहीं जी, आती रहती हूँ, काफ़ी आती रहती हूँ, क्योंकि हमारा दफ्तर पेशावर में है और वैसे भी
पेशावर एक बड़ा शहर है, इधर हमारे करीब है इस्लामाबाद के, तो आती रहती है। कैसा लगता है जब जब पेशावर आती है? खाना बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे यहाँ का खाना, क्योंकि उसमें मसाले तेज नहीं होते। खाए हैं? टिक्के शिक्के खाए हैं, लैम्ब खाया है, और वो उसमें ये खाती हूँ बल्कि रेगुलरली। और आपकी रोटी मुझे बहुत पसंद है। अरे वाह, तो बहुत बाकायदगी से। तो फौजिया मैम आप तो सिर्फ खाने की तारीफ की है, मतलब यहाँ के लोग बुरे हैं? लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हॉस्पिटेबल हैं पेशावर के लोग, तो इट्स वेरी नाइस टू कम हियर। चले, थैंक यू सो मच, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, क्योंकि जब कल हमें पता चला कि आप पेशावर आ रही है तो हमने कहा कि भाई ये मौका है, क्योंकि माशाल्लाह आप काम कर रही है और आप वफाकी सतह पे काम कर रही है, तो ये बहुत अच्छा है कि कम से कम हमारी व्यूअर्स को अवेयरनेस हो जाए और वो थोड़े से समझ जाए इस बात को कि उन्होंने करना क्या है और किस तरह उन्होंने अपने आप को सेव करना है। अच्छा मैम, सबसे पहले तो ये बताया कि ये जो स्टेप आपने उठाया हुआ है या आप कर रही है, या आपके बाकी जो सूबाई मुंतसिब साहबान भी है वो भी कर रही है, तो इन सब चीज़ों को हैंडल करना और इस तरह किस तरह हम वर्किंग प्लेस को सेफ बना सकते हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे वो खवातीन हो? देखिए, मेरे ख्याल से आप भी खातून है, मैं भी औरत हूँ, हमें पता है कि हमारे लिए सड़कें भी सेफ़ नहीं हैं और वर्क प्लेसेस, काम की जगह बिल्कुल अनसेफ है। क्योंकि जब एक औरत घर से निकलती है काम करने के लिए तो ये तासुर कई दफ़ा होता है कि इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और अगर ये आई है तो शायद ये ख़राब औरत है, जैसे कहते हैं। अमूमन यही होता है, अमूमन यही होता है ना। और ख़ास तौर पे अगर जूनियर पोजीशंस पे औरतें हैं, सीनियर पोजीशन पे फिर भी उनकी थोड़ी सी बेहतर इज्जत होती है। तो इसलिए उन वर्क प्लेसेस को सेफ बनाना बहुत अहम है। ना सिर्फ उस औरत के लिए अहम है जो काम करने के लिए गई है, उसके ख़ानदान के लिए अहम है, क्योंकि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि मेरी बेटी बहन जो भी है जा रही है काम की जगह, वो सेफ है। बल्कि हमारे मुल्क की तरक्की के लिए ये बहुत सेफ है, क्योंकि हम अपने मुल्क का 30% जो GDP होता है वो लूज करते हैं, मुआशी तरक्की लूज करते हैं, क्योंकि हमारी औरतें एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट में काम नहीं करती हैं। उनको आइडेंटिटी नहीं दी जाती, उनको पहले तो बराबर के मौके नहीं दिए जाते कि वो उनको हायर किया जाए, क्योंकि आप देखें पाकिस्तान की लेबर फोर्स में 22% खाली औरतें हैं। हालांकि बहुत सारी औरतें अब घरों में बैठ के काम कर रही हैं, मगर वो कोई काउंट भी नहीं होती हैं। और दूसरा, जब वो काम पे आ जाती हैं तो फिर उनको जूनियर पोजीशंस में रखा जाता है, ऊपर नहीं जाने देते। कितने सालों तक तो मैडम उनको रगड़ा दिया जाता है, मौके नहीं मिलते, बिल्कुल तरक्की के मौके नहीं मिलते। इसलिए ये कानून जिसके साथ हम डील करते हैं, चाहे वफाकी मोहतसिब हो या सूबाई मोहतसिब, ये बहुत अहम कवानीन है, क्योंकि ये ना सिर्फ डील करते हैं सेक्शुअल हरासमेंट के साथ, यानी कि जिनसी तकाज़ों के साथ, बल्कि तफरीक, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर को बहुत डील करते हैं। वो ये नहीं देखते कि आपकी इंटेंशन क्या है, कि जी आपका दिल तो बहुत साफ है, मगर आपकी अगर तंजीम में औरतें सीनियर पोजीशंस पे नहीं नजर आ रही तो उस आउटकम को मेजर किया जाता है। ये बहुत अहम है ना, क्योंकि बहुत दफा हम सब चाहते कुछ हैं मगर उसके लिए करते कुछ नहीं। अच्छा, इसीलिए शायद अभी ज़की साहब ने सबसे पहले मेरी इंट्रोडक्शन कराई है और उसने मेरी डिजिग्नेशन क्लियर करा दी है एक ही लेवल पे। बिल्कुल बिल्कुल। और आप अक्सर देखेंगी कि जब आप भी कई जगहों पे जाती होंगी एज अ सीनियर पर्सन, तो आप अकेली खातून होंगी बहुत सारी जगहों पे। हालांकि मर्द हजरात बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा ख्याल करते हैं, मगर मुश्किल हो जाता है ना कि हम अकेली और सर्वाइव करना मुश्किल, बहुत मुश्किल होता है। एंड देन आवर नीड्स आर नॉट अंडरस्टूड, हमारी क्या ज़रूरियात हैं, किस तरीके से बात करनी है, एक जो माइंड सेट है वो भी हमारे आड़े आ जाता है हमेशा, क्योंकि इंटरेक्ट नहीं करते लोग औरतों के साथ, तो बहुत बड़ा मसला। दूसरी बात ये भी होती है कि मैडम कुछ उनकी बातें ऊपर तक पहुंचाई भी नहीं जाती, उनके मसले मसाइल पे बात नहीं की जाती, उनको इग्नोर किया जाता है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी पे अगर हम कह दें ना तो ज्यादा उनको दबाया जाता है खवातीन को, छोड़ो तुम समझती नहीं हो, छोड़ो। अमूमन हर जगह तो उसके साथ यही होता है। बिल्कुल, एक वो कुछ पिदराना किस्म का एक एटीट्यूड होता है जिसको पेट्रियार्कल या पटर्नल कहते हैं हम। वो एक लड़की आई है तो उसको हमेशा बच्चे बच्ची, बेटा बेटी उसको कहा जाएगा, हालांकि शी इज अ प्रोफेशनल और वो बड़ी काबिल है, मगर उसको यही समझा जाएगा कि अभी ये एक बच्ची टाइप है, इसको कुछ पता नहीं है, जो आपने पहले बात की ना। तो ये माइंडसेट या सोच को तब्दील करने की भी बड़ी जरूरत है अगर औरतों को भरपूर किरदार अदा करना है अपना इदारा अगर जैसे आप एक ओहदे पे हैं माशाल्लाह, जैसे आप हैं, जैसे हम लोग हैं, और एक मैं ये कहूँगी हम रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं इनके लिए और इनके लिए रास्ते बनाते हैं, तो इन खवातीन को अगर, ये मैं सिर्फ खवातीन की बात नहीं, क्योंकि इस पे अगर हम बात करें तो फिर बाकी जेंडर्स खफा होते हैं, स्पेशली मर्द हजरात कहते हैं ओए मर्दों को भी तो ये प्रॉब्लम होती है, तो मर्दों को आई डोंट थिंक सो कि खवातीन सी होती होगी, बट मे बी शायद मर्दों को भी मसला मर्दों से पेश आता होगा। सो यू आर वर्किंग फॉर ऑल द जेंडर्स? यस, जो हमारे जो हरासमेंट का कानून है, चाहे वफाक में हो या सूबों में हो, वो मर्द औरत ट्रांसजेंडर तीनों के लिए, जिस तरह आपने भी पहले कहा, मर्दों की भी बिल्कुल हरासमेंट होती है। अक्सर औकात जो मर्द
मर्दानगी के पैमाने पे पूरा नहीं उतरता, उसको समझा जाता है कि वो लेसर मेल है, वो कम तर है वो। और बड़ा मुश्किल होता है कि हर वक्त इंसान वो अल्फा मेल का अपना रवैया अपनाई रखे। जिस तरह हर औरत हर वक्त बहुत जनाना नहीं होती, लाइक अगर आप मुझे देखें तो शायद मैं वो बहुत जो फेमिनिन औरत है उसके पैमाने पे पूरी नहीं उतरूंगी। हम मर्द बन जाते हैं तो फिर वो एग्जैक्टली फिर हम कहते हैं मर्द बन गए, मगर ऐसी बात नहीं है। हम खवातीन हैं, खवातीन हर रंग में आती हैं, मर्द भी हर रंग में आते हैं, तो उनको एक पैमाने के ऊपर उतारना उनके लिए के साथ ज्यादती है। मर्द भी हरास होते हैं, ट्रांसजेंडर तो आपको पता है बहुत ज्यादा हरास होते हैं। वो बेचारे जहाँ भी जाते हैं सबसे पहले उनकी तज़हीक की जाती है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, फिर उसके बाद उनको मौके बिल्कुल नहीं मिलते। कई दफ़ा तो उनकी फ़िज़िकल सेफ्टी एट रिस्क होती है, क्योंकि वो समझा जाता है कि शायद वो सिर्फ एक ही काम के लिए, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। एग्जैक्टली। तो ये सब कानून सबके लिए है। सबके लिए। अच्छा मैडम, जैसे हम आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में कहे कि हमारे लिए अगर देखा जाए तो रोड्स भी सेफ नहीं है, और आजकल ज्यादातर इश्यूज जो है तो खवातीन के साथ, अगर दफातर की बात की जाए तो चलो वो तो किसी हद तक एक्सेप्टेबल चीज़ों में आ जाती है, लेकिन अगर हम रोड सेफ्टी को देखा जाए तो वो तो बिल्कुल ही अनसेफ चीज़ें हैं। वहाँ पे आए दिन खवातीन के साथ, बच्चों के साथ ये मसले मसाइल होते जा रहे हैं, और ऑल दोस्त के वो उसको रिकवर किया जाता है, बट फिर भी वो ज्यादा होते जा रहे हैं। दैट इज़ ट्रू जी। क्योंकि देखिए खवातीन भी अब ज़्यादा काम करने के लिए निकल के आ रही है, मुआशी एक मजबूरी बन गई है। पहले तो चॉइस थी, अब मजबूरी बन गई है। बिल्कुल। तो जब आती हैं ज़्यादा तो शायद ये हो गए, प्लस सोशल मीडिया की वजह से भी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन बड़ी बढ़ गई है। तो लोगों के पास इनपुट बहुत है, वो सीखते बहुत कुछ है, मगर उनके पास निकालने के लिए नहीं है, तो वो फिर मज़ीद बदतमीज़ी करते हैं और सेक्सुअली हरास करते हैं। पुलिस के पास ताज़ीरात पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान पीनल कोड के तहत सेक्शन 509 है, सेक्शन 354 है, सेक्शन 355A है, जिसमें वो भरपूर इसका कॉग्निसेंस ले सकते हैं, इसके ऊपर एक्शन कर सकते हैं। और अब अच्छी बात यह है कि पुलिस अपनी इस जिम्मेदारी को भी समझती है। शायद ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये नहीं है कि इसके खिलाफ कोई कानून नहीं है। सड़क पे अगर औरत की, मर्द की या किसी की भी तजलील की जाए या ख़ासतौर पे सेक्सुअल हरासमेंट हो, ख़वातीन को बहुत फेस करना पड़ता है, तो उनके पास कानून है। एक और जो चीज़ है, आप बहुत बड़े शहरों में सेफ सिटीज़ अथॉरिटी या सेफ सिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, यानी कि कैमरे लग गए हैं। वो कैमरे जो हैं उसकी शहादत, कैमरे की फुटेज कोर्ट में एक्सेप्टेबल है। ठीक। तो अगर नज़र आ रहा है कि एक लड़की को किया जा रहा है, हरास किया जा रहा है, आपने शायद कुछ एक महीना पहले देखी हो फुटेज, मेरे ख्याल से लाहौर की थी शायद, कि फीमेल जो थी, फीमेल जा रही है और एक आदमी बिल्कुल अनरिलेटेड उसको पकड़, उसकी जो चिंची में बैठी हुई उसको पकड़ रहा है। exactly. आप कितनी खौफ शुरू हो जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि बेशुमार वीडियोस, अपनी गाड़ी में वो जा रही है और उसको जो है तो मतलब पीछे रोक देते हैं। उस केस में जो कैमरों से फुटेज आई, किसी ने वो एक तो फुटेज बना ली, उस फुटेज के बेसिस पे पता चल गया कि ये कहाँ हुआ है। पुलिस के कैमरों से, सेफ सिटीज़ के कैमरों से फुटेज आई और उसकी वजह से उसको प्रॉपर क्रिमिनल उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। ओके। फौजिया वकार से बस हम ये पूछेंगे जी कि इन वर्क प्लेस को खवातीन के लिए या फॉर ऑल जेंडर कैसे सेव किया जाता है और कौन से वो इकदामात है जो उठाए जा सकते हैं, इसमें मजीद बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है जी। वाले ग्रांड को तुन के ओवड़ा उनते के दमा पस दागे साल लाइव जियो नन सरा वफा की मुतसिफ से बनास्ता दा फौजी वकार से बचदा इस्लामाबाद से ताल्लुक लरी खो चुकी दी जॉब दा से दे चिदी दिठोलो ऑफिस विजिट कई अवल तो बदी चिदिनो चिकम वीकली या मंथली चिकम कार की लग्या दे दागी लुक आफ्टर या दागी बांधे चेक एंड बैलेंस सातल या अगर शैन ऑफ द पार दिल पे खबर तदी रागली दियो बेसिंग दुई च दी ट्रैवल को दी लाइव दे दासी ट्रैवल बकई खुमुंगा लगे उदी सरम खबर आते रे कवली च आया वर्क प्लेस यानी जनाना या नारीना च चरत दी कार कई अल तागद दी द पार सिंगल सेफ इन चूंकि हरासमेंट हर जे की अगर जनानो सरम की नारीनो सरम की और क्रॉस जेंडर सरम की दागी द पार अधिकार की अमूमन चिता सुगोरे नो सुबाई मुतसिक या वफाक मुतसिक दी ज्यादातर आग कानून दी सॉल्व कई चिकम द नोर दफातर ना अगर निकीगी उन टुपरन को इम्पॉसिबल को ये लोग पॉसिबल बना देते हैं, तो तभी इसके इनके पास जाना पड़ता है। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले मैडम से मैं कह रही थी कि अगर इन जगहों पे ये इस तरह की फील हो खवातीन को या मर्दों कि भाई ये जगह मेरे लिए सेफ नहीं है, मुझे हरास्ट किया जाता है, नट इनके कि आपको हाथ लगाया जाए आंखों से भी, जस्टिस से भी, तो वो उनको फौरी क्या इकदामात लेने चाहिए और इन जगहों पे किस तरह किस सिचुएशन को हमें हैंडल करना चाहिए?
हरासमेंट जो है वो एक बड़ा मुश्किल सा समाजी मसला है जिसमें आपके पास कई दफ़ा एविडेंस नहीं होता। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर ख़वातीन को ऐसी चीज़ फेस करें जो बहुत ज़्यादा शदीद ना हो तो किसी तरीके से वो कुछ एविडेंस रख लें। एविडेंस का मतलब ये है कि अगर वो कोई रिकॉर्ड कर सकती हैं तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह आते हैं जो आप डिसअपीयरिंग में होते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए। और इसके अलावा किसी को, अपने साथी को बताइए, ज़रूर बताएं वो, क्योंकि वो भी हम एविडेंस में शहादत में लेके आते हैं। उनको बता दें, सीसीटीवी फुटेज हम खुद भी मंगवा लेंगे, वो आके हमें बता सकती हैं। तो ये तो इमीडिएट स्टेप्स ले सकती हैं। फिर फ़ौरन रिपोर्ट करें। हर इदारे में लाजमी है कानून के मुताबिक कि एक हरासमेंट इंक्वायरी बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है, हर इदारे में लाजमी है कानून के मुताबिक 2010 से लेके ऑनवर्ड्स। तो अपनी हरासमेंट इंक्वायरी कमेटी को जाके रिपोर्ट करें। अब अनोनिमस कंप्लेंट्स जो हैं जिसमें नामालूम कंप्लेंट्स नहीं एक्सेप्ट होती कानून के तहत, तो बताना पड़ता है कि मैं कौन हूँ और अक्यूज्ड कौन है, आप किसको अक्यूज कर रहे हैं। तो आप जाके एक सादा सा दरखास्त दे दें जाके, या बता दें जाके, तो उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होती है जिसमें कि आपसे भी सवाल होते हैं, उनसे भी सवाल होते हैं, आपके पास भी गवाही और गवाह लाने की स्पेस है, ज़रूरत है, उनके पास भी है। कई दफा लोगों को अपने इदारे पे इतना एतमाद नहीं होता। ऐसी सूरत में जॉब पे डर रहे होते हैं, ऐसी सूरत में या अदरवाइज ऑल्सो वो डायरेक्टली सूबाई मोतसिब या वफाकी मोतसिब के पास आ सकते हैं। ठीक, आसानी से कानून उनको इजाज़त देता है कि जहाँ भी वो कंफर्टेबल फील करें वो वहाँ पे आ जाएं। पानी है आपके? थैंक यू सो मच। अच्छा जिग्रानो लिदन को जिस कम जनाना चे नारीना को जनाने वगी त हरासमेंट फील कीगी प जस्टिस बांधे प खबरों बांधे या प फिजिकल बांधे अगी च देनु सिंह च मैडम हुई च तासु फौरन दे बांधे रिपोर्ट दर्ज कवल जरूरी दी नजदीकी च तासु उसका मेदारी दी तासु ततले शेख जैसे मैडम ने कहा कि हर वर्किंग प्लेस पे या हर इदारे में एक इस तरह का ऑफिस होना चाहिए जहाँ पे आसानी से वो जाके अपने एक कमेटी होती है, इदारे के अपने मेंबरान अपनी कमेटी बना दे 3 लोगों की, 3 से ज्यादा नहीं, 3 से कम नहीं, उसमें औरत का होना लाजमी है, सीनियर औरत का होना लाजमी है। वो बता दें उनको जाके, या हमारे पास कंप्लेन कर दें, हमारे पास या सूबाई मोतसिब के पास। बड़ा आसान है, ऑनलाइन आपने कंप्लेंट अगर करनी है तो आप जाके ऑनलाइन 3 लाइनें लिखते हैं कि जी मेरे साथ हरासमेंट हो रही है, मैं शिकायत दर्ज कराना चाह रही हूँ। उस पर फिर फौरन आपकी शिकायत दर्ज हो जाती है उसी दिन। फिर आपको खातून को बुलाया जाता है और उनसे मजीद तफसीलात लेके बड़े एक जेंडर सेंसिटिव माहौल में, कमेटी का भी ये फंक्शन है, हमारा ये रिक्वायरमेंट है, माहौल में उनसे पूछते हैं। फिर दूसरी साइड को बताया जाता है कि आपके खिलाफ ये शिकायत आई है, आप क्या कहते हैं, तो उसका रिप्लाई आता है। और एक भरपूर प्रोसेस के जरिए बगैर वकील के, बगैर किसी वकील की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम डिस्करेज करते हैं, लोग ले आते हैं मगर हम डिस्करेज करते हैं बगैर किसी फीस के, और बड़े जल्दी आपका जो हरासमेंट कंप्लेंट है उसका फैसला हो जाता है। दैट्स गुड जी। नहीं ये तासु लोग कितने तो वकील जरूरत हुई जगह अमूमन खलक वकीलान लपार पैसे नहीं हुई, क्योंकि वकील रखने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है। कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ बातें ऐसी होती है जो वो वकील तक नहीं बताना चाहते ना, वो उनके प्राइवेसी और होती है। तो चलो देखिए आगे इस सब निश्ता बल्दा। अच्छा इनके लिए फिर मैं ये कहूँगी कि हर इदारे में या हर गवर्नमेंट सतह पे रूल्स ऑर्डर्स पास किए जाते, ठीक है, फिर उस पर फर्दर एक्शन कैसे लिया जाता है और कौन से रूल्स है, कौन से ऑर्डर्स है जो आप लोग अभी लेने वाले हैं या हो गए हैं? बिल्कुल जी, ये क्योंकि कानून अभी अमेंड हुआ था 2022 और उसमें जो रवैये हैं, जो खास तौर पे वर्किंग औरतों के खिलाफ रवैये हैं, खास तौर पे, मगर मर्दों के खिलाफ भी कई दफा लोगों का रवैया खराब होता है, कम होता है हमारी सोसाइटी में, बहुत कम होता है क्योंकि ज्यादातर मर्द हैं सोसाइटी में, तो वो रवैयों को भी अब देखा जाता है। ठीक, मिसाल अगर आपको दूं तो एक हाल ही में ऑर्डर हमने पास किया जिसमें कि एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उन्होंने ये बातें बाकायदगी से करते थे मीटिंगों में लोगों के सामने कि खातून है, अभी इसका थोड़ा दिमाग खराब है, 35 साल के बाद हो जाता है, इसको चांस दो, इसके साथ रवैया ठीक रखो, क्योंकि इंसैनिटी जिस तरह है ना कि वो क्रेजी होगी, क्रेजी का लफ्ज़ सिंपैथीज, तो वो इस तरह की बात, वो अपनी तरफ से बड़े शफकत दिखा रहे थे कि इसका प्रॉब्लम नहीं है, इसका दिमाग खराब हो गया 35 के बाद। फिर उन्होंने ये भी कहा कि नहीं 50 के बाद। अब मेरी जैसी औरत जो 50 क्रॉस कर गई है उसके लिए ये बड़ा इंसल्टिंग है, क्योंकि मेरे ख्याल से किसी भी ज़िंदगी की फेज़ में
मैं इरैशनल नहीं हुई और खवातीन नहीं होती हैं। हार्मोन सबके, मर्दों के भी ऊपर नीचे होते हैं, मगर दैट डजंट मीन कि वो इरैशनल होगी। तो ऐसे रवैये भी हरासमेंट में आते हैं और उस पर हमारे फैसले रिसेंटली आए हैं जो अवाम ने फिर बहुत ज्यादा पसंद की हैं। अच्छा। वो फैसला पसंद किया है क्योंकि हर एक की रियलिटी है। एग्जैक्टली लोगों के साथ रोज ये बातें होती हैं तो लोगों को एकदम वो हिट की चीज दिल को लगी ना, दिल को लगी दिल ना। को लगी। फिर सिमिलरली एक जचगी के दौरान जो छुट्टी है मैटरनिटी लीव, उसका हक है, कानून ने हक दिया हुआ है, तमाम सूबों में कानून है, वफाक के लेवल पे कानून है। 2023 में एक बहुत मजबूत कानून आया कि औरत को पहले, दूसरे और तीसरे बच्चे पे छुट्टी मिलेगी, आदमी को भी 1 महीने की छुट्टी 3 बच्चों तक मिलेगी। बावजूद इसकी छुट्टी नहीं मिलती। तो अभी एक हाल ही में एक हमारा फैसला ये आया था कि जचगी में छुट्टी का हक एक बुनियादी इंसानी हक है। हमारा कानून तो देता ही है, हमारा आइन वो गारंटी करता है। आइन में क्लियर लफ्जों में लिखा हुआ है कि औरत की जचगी की हिफाजत रियासत का काम है। रियासत का काम। तो उस पर फैसला हमने दिया कि ये तो इसका हक था, आपने कैसे इसको नौकरी से निकाल दिया? जचगी की छुट्टी के दौरान 3 महीने की छुट्टी दी, 1 महीने के बाद निकाल दिया, ये तो आप नहीं कर सकते। उसको बहाल भी किया और कंपनी पे 10 लाख। फिर ये भी होता है ना कि नहीं, अब बच्चा है, बच्चे के साथ ये कैसे आएगी, बच्चा डिस्टर्ब करेगा, माहौल को डिस्टर्ब करेगा, ये फिर इश्यूज बहुत ज्यादा। जो जरा सी भी बड़ी कंपनी है ना, एक छोटा सा कमरा लेके उसके अंदर एक ह्यूमन रिसोर्स आपने डालना है, यानी कि कोई देखभाल के लिए रख लें, आप डे केयर बना लें। डे केयर के लिए भी कवानीन कई जगहों पे या पॉलिसियां हर सूबे में मौजूद हैं, मगर ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारा ख्याल है कि औरत घर के भी काम करे, बाहर के भी काम करे, उसकी कारकर्दगी बहुत आला। और आप और मैं ये जानते हैं कि हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि हम हर वक्त औरत होने के पैमाने पे असेस किए जाते हैं, सर्वाइव कर रहे होते ये तो औरत है, तो हम उससे भी बेहतर करते हैं, मर्दों से बेहतर करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें बहुत सख्ती से देखा जा रहा है, चाहे वो घर में हो चाहे ऑफिस में, चाहे घर में हो चाहे ऑफिस में हो। तो थोड़ी सहूलत तो देना हमारा कंपनियों का, रियासत का फर्ज है, और वो फिर करती हैं। औरतें बड़ी लायक औरतें होती हैं। मेरे ख्याल से कि अगर स्टूडेंट एज से देखा जाए, खवातीन या लड़कियां हमेशा लायक होती है, हमेशा नंबर्स वाइज तो वो बहुत बहुत टॉपर होती है, ठीक है। तो ये चीज भी लड़कों से बर्दाश्त नहीं होती। फिर अगर वो शादीशुदा ससुराल में अगर वो अच्छा रहे तो वो भी फिर बाकियों को चुपती है, ये क्यों इतनी अच्छी है। अगर फिर वर्किंग प्लेस भी है तो उस पर भी ये मसले मसाइल, मेरे ख्याल से खातून बेचारी के साथ मरते दम तक ये मसले मसाइल जुड़े रहते हैं। तो इसे हम मजीद बात करेंगे। जिगरान कतुन के उदमा वाले पजदागी ब्यारज सरनास तदा फौजी वकार से बाद इस्लामाबाद से ताल्लुक लोरी पेखवर तरागले दा पेखवर के दा गोल्डन चांस खैबर नेटवर्क तनन मिलो शुचिदीम राउख्ती दी। अच्छा मैडम, जैसे बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि उन्होंने कांटेक्ट कैसे करना है, और जैसे कि अभी कुछ अरसे से लोगों को ये अवेयरनेस हुई है कि हाँ, कोर्ट कचहरी के अलावा भी एक ऐसे दफातर है, ऐसा कानून है जहां वो जा सकते हैं, उनकी सुनी जाती है, उन पे फौरी अमल की जाती है। ये नहीं कि वो सालों तारीख पे तारीख दी जाती है, वो वाला सीन नहीं होता। तो वो ये बताए कि अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस तो आ गई लोगों में, लेकिन अगर इस तरह लोग कोई कांटेक्ट करना चाहे या वो चाहे कि आप लोगों से रिज्यू करे, अपनी प्रॉब्लम्स को आप तक लेकर आए और वो चाहे कि इस पर फौरी असर हो, तो वो किस तरह कांटेक्ट करेंगे? हमें रिज्यू करने का बहुत आसान तरीका है। एक तो हमारी हेल्पलाइन है, वो 0344 367 367, ठीक है, उस पर वो कॉल कर लें तो उनको काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है। या ऑनलाइन जाके 2-3 लाइनें लिख दें तो फिर हमारी टीम उनको बता देगी कि आप आ जाएं, खुद पर्सनली आ गूगल जाएं। पे जाके वो सर्च वो कर गूगल लें। पे सर्च करें, फॉस्पा ही लिख देते हैं, ठीक है। तो जब उसको क्लिक करते हैं तो ऑनलाइन कंप्लेंट का भी आ जाता है। ठीक है। बहुत आसान है। लोग हमें कई दफ़ा सिर्फ 4 लफ्ज़ों में अपनी कंप्लेंट लिखते हैं कि जी मैं हरास हो रही हूँ, फिर हम उनको रीच बैक करते हैं, हम वापस उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि आप आ जाइए इस तारीख को और हमें तफसील में बता दें। और फिर वो पहली जो हम उनकी कंप्लेंट सुनते हैं अकेली खातून से नॉर्मली या अकेले कंप्लेनेंट से सुनते हैं, ताकि दूसरी साइड ना हो और वो बड़े तसल्ली से अपनी शिकायत बता सकें। वो पर्सनली आ जाएं खुद से ही या डाक में भेज दें। तो हमारे पास 4-5 तरीके हैं कंप्लेंट जिस पे वो अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और फिर बड़ी जल्दी हम उनकी शिकायत दर्ज करके और उस पर आगे चलते हैं। और मैंने जैसा पहले भी कहा, किसी वकील की ज़रूरत नहीं है, बड़ा साजगार माहौल होता है, सेफ माहौल होता है। अगर शिकायत दर्ज करने के बाद उनके साथ कोई इंतकामी कार्रवाई हो, उसकी हम फौरन नोटिस लेते हैं। और वो नोटिस का मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पे किसी औरत को उसने शिकायत की और उसको पोस्ट आउट कर दिया, या किसी भी इंसान को, हम वो ट्रांसफ़र ऑर्डर वापस ले लेते हैं। ओके, वो मना हो जाता है। ठीक। टर्मिनेशन बिल्कुल
पॉसिबल नहीं है कि जब शिकायत हमारे पास आ गई उसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। वो ये नहीं कह सकते कि ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव या निज़ामी मामला है। वो हम कहते हैं कि नहीं जी, जब तक ये कंप्लेंट ख़त्म नहीं होगी आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी नहीं ले सकते। हर तरह की इंतकामी कार्रवाई रुक जाती है, इसलिए लोग फिर बड़ी तसल्ली से आ जाते हैं। बहुत आसान है। अच्छा, एक आपकी उससे मैं वसातत से ये भी बता दूं कि इस्लामाबाद में अगर कोई प्रॉपर्टी है तो हमारा दफ्तर नोटिस ले सकता है, औरत की प्रॉपर्टी है। यहाँ की कोई प्रॉपर्टी है तो सूबाई मोहतसिब नोटिस ले सकते हैं। अभी हमने एक केस में, जो कि सिविल कोर्टों के पहले चक्कर लगाते थे, एक खातून का फैसला किया। वो सिविल कोर्ट के 31 साल से चक्कर लगा रही थी, कभी एक कोर्ट कभी दूसरा। बेचारी बूढ़ी होगी। बिल्कुल, मगर हमारे पास आने चक्कर लगा के हमारे पास आने के फौरन बाद हमने उसकी प्रॉपर्टी उसको दिलवा दी। वो इसलिए कि हमारे पास ऐसे इख्तियारात भी हैं, ख़ास तौर पे जब उसका टाइटल क्लियर है, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर विरासती जायदाद है तो बाप की बेटी है, नादरा का रिकॉर्ड है, सब आपके पास रेवेन्यू का रिकॉर्ड है, नजर आ रहा है उसकी बेटी है, फिर उसको वो जायदाद क्यों ना मिले। अच्छा मैम, अगर मैं इस्लामाबाद लाहौर की बात कर लूँ तो चलो समहाउ वो वहाँ पे वो ये नज़रअंदाज नहीं किया जाता, लेकिन हम केपी की बात कर ले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें नज़रअंदाज की जाती है। फिर वो आगे से कहते हैं चलो पढ़ा दिया ना, लिखा दिया ना, इतना कुछ करा दिया, अब तुम विरासत में क्यों हिस्सा ले रही हो। तो क्या लड़के को नहीं पढ़ाया? क्या उसका नहीं ख्याल किया? क्या उसकी शादी धूमधाम से नहीं की? तो ये लड़की के लिए क्यों इस्तेमाल हो रहा है ये खाली ये बात। और अच्छा, हिस्सा भी वो बराबर का हिस्सा नहीं दिया जाता ना, वो कुछ हाफ से भी हाफ करके कुछ दिया जाता है। जो अभी तो पाकिस्तान का जो कानून है शरई है, और शरई में ये है कि लड़की को एक हिस्सा मिलता है, लड़के को दो हिस्सा मिलता है। वो एक हिस्सा भी देने को लोग तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? इसको खामन से मिल जाएगा। वो एक इंसान है, वो एक शहरी है, एक भरपूर हक रखने वाला इंसान है, उसको आप हिस्से से क्यों महरूम कर रहे हैं? उसको हमेशा बाप भाई खामन उसके साथ क्यों मिला के आप जोड़ के क्यों देख रहे हैं? वो भरपूर इंसान है, इंसान। और ये हक सबके लिए, सिर्फ मर्दों के लिए नहीं। जैसे कि मैम ने बात की और जैसे कि हम हमेशा इस बात पे बात करते हैं कि भाई अगर खातून है तो उसके हेल्थ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए, उसके एजुकेशन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए, और अगर वो किसी जगह पे काम कर रही है तो उसको मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि वो बहुत ही आजिज़ है, बहुत ही चलो कुछ लोग तो निकल आए, लेकिन बहुत ख़वातीन ऐसी होती है मैम कि वो, आप भी एग्री करेंगे कि वो मजबूरी के तहत निकलती है। देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आती कि मजबूरी किसको नहीं है। पाकिस्तान में कोई हर दूसरी 0.00002% या 1% लोग हैं जो इस नहज पे हैं कि उनको जरूरत नहीं है। मुझे तो जरूरत है पैसे की जो मैं कमा रही हूँ, तो किसको जरूरत नहीं है? ये पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, हम सबको जरूरत है, तो इसलिए उसको एनेबल करना बड़ा जरूरी है। जो देखिए, जब एक औरत काम करती है पूरा खानदान बेहतर हो जाता है, उसके हालात बेहतर हो जाते हैं, वो अपने बच्चे की नशो नुमा बेहतर कर सकती है, मर्द से बोझ कम हो जाता है। हमारे मर्दों पे भी बड़ा बोझ है, जब वो अपनी बहन या बेटी या बीवी को जाके छोड़ के आते हैं कॉलेजों स्कूलों और काम की जगह पे, उनको मेहनत करनी पड़ती है, वो अपने काम से वो जल्दी निकलते हैं, कितना बोझ है उसके ऊपर। अगर वो सेफली औरत खुद ट्रैवल करे, वो आदमी अपने काम पे फोकस कर सकता है। मैम, अगर कोई इस रूल्स को फॉलो ना करे तो उनके लिए क्या सजा है? छोटी सजाएं भी हैं और बड़ी सजाएं भी हैं। जो छोटी सजाएं हैं उसमें जिस तरह की वार्निंग दे देना या फाइन कर देना या उसके साथ साथ ही तरक्की को एक जगह पे रोकना कुछ अरसे के लिए, या इंक्रीमेंट को रोक देना। बड़ी सजा में नौकरी से बर्खास्त कर देना, और उसके साथ साथ डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है, जिसका मतलब यह है कि उसको अगर सरकारी मुलाजिम है तो किसी भी सरकारी दफ्तर में दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं करेगा, नहीं मिल सकती फिर दोबारा, फॉरएवर। सो डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है। इसके साथ ही फाइन, यानी कि ना सिर्फ जो विक्टिम है उसको पैसे जाएंगे, बल्कि सरकारी खजाने में भी पैसे जाएंगे, डबल नुकसान। और डबल नुकसान। और अगर कोई जिस तरह डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, लॉयर हैं, जो अपने लिए काम करते हैं, उन्होंने लोगों को भी इंगेज किया हुआ होता है, उनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होती, तो उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। ओके, तो बस इससे बचने के लिए तो मेरे ख्याल से कि ये जितना अच्छा रहे, जितना डिसेंट रहे, जितना एक खूबसूरत खुशगवार माहौल बनाएं, को इंसान ट्रीट करें और इज्जत करें, स्पेशली खातून को। हाँ, खातून को जो अल्लाह ने उसकी इज्जत दी है, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इज्जत दी है, अगर वो इज्जत आम बंदा भी उसको दे तो मेरे ख्याल से उसके लिए मोर देन इनफ है। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी जिंदगी वो सर्वाइव कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आपको कैसा लगा पेशावर आके, हमारे स्टेशन खैबर नेटवर्क में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी, मुझे पता चला कि आपका कितना बड़ा नेटवर्क है, कितनी आपकी रीच है,
और क्या अहमियत है। तो मेरी उम्मीद है कि आप वक्तन फ़वक्तन ये इन अहम मौज़ुओं पे लोगों को आगाही देते रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बल्कि यहाँ हमारी जो सूबाई मुंतसिब साहबान है वो आ चुकी है, खवातीन आ चुकी हैं हमारी, और माशाल्लाह उनके साथ भी बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही है हमारी मॉर्निंग शोज में, और मेरी शोज में आ चुकी है। सो मेरे लिए और गुड लक और अच्छी बात है कि आप हमारे शो में आ गई और मेरे शो में आ गई, तो और वो सोने पे सुहागी वाली आपके ऊपर जिम्मेदारी पड़ गई है एग्जैक्टली आपने ये चीजें आगे लेके जानी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खैबर नेटवर्क हमेशा ये मिशन रहे खवातीन को सपोर्ट करना और खवातीन के लिए रास्ते निकालना, और उनको आप पता है हमने जब यहाँ अपने शोज में हेल्थ एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर दिया था खवातीन के लिए, तो लोगों ने बड़े एतराजात किए, आप लोग क्या दिखा रहे हो। तो हमने कहा नहीं, खातून का हक है, जो नहीं आ सकती तो इससे सीख के वो कर सकती है। उनके एजुकेशन के लिए लड़े, विरासत के लिए लड़े, उनकी हेल्थ के लिए लड़े, और इंशाल्लाह ये जंग जारी रहेगी, चलते रहेंगे। अच्छा व्यूअर्स, तासो नमूंगा सवाल कड़ो चे तासो रात 2 बजे पाकिस्तान कौमी तराना चाली कलेवा, पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा है, तो उसका जवाब आप लोगों ने भी दिया और मैं भी दे देती हूँ जी। हाफिज जलंधरी साहब ने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा था, और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक बंदा बच्चा बच्चा जानता है कि कौमी तराना किसने लिखा, हाफिज जलंधरी साहब कौन थे। ये उनके तस्वीर भी आ रही है जी, आप देख ले। और ये सवाल था झलक ब्यूटी क्रीम के साइड से, जो जस्ट इन 3 डेज में आपको गोरा चिट्टा करेगा, आपके रिंकल्स गायब करेगा और आपके डार्क सर्कल्स वगैरह सब कुछ गायब कर देंगे। थैंक यू सो मच। और झलक ब्यूटी क्रीम ने मैडम के लिए भी एक गिफ्ट हैम्पर भिजवाया हुआ है, तो हम आपको देंगे। पेशावर से इस्लामाबाद तक आपके साथ ये सफर करेगा ये ले लीजिए, झलक ब्यूटी क्रीम के साइड से गिफ्ट है पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। देर ज़्यादा मनना ग्राउंड लिदन को सबा बैठिए प्लीज। सबा द जुमेर वजदा और सबा रस्ता उस तपति चिपदा के रजबान ने कम महल गुलवी और कम ससने भी जमशेद अली खान से भी, ज़कीउर रहमान से भी, कामरान जान से भी, वसीम से भी और मीना शम से वदा मुंगा पिंजा का सांता सुलाई टीम ए दा खस्ता को ने खबर सार रोडू इंशाल्लाह सबा हाजिरी गु चल देन दुआगाउन की मुंगा ठोलियात साथे दा अल्लाह पामान।